Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Nikki from Team Gyan Kshetra. So guys, hoping that you all are doing great over there. You all are keeping yourself safe and motivated at the same time. Motivated why? With all the rumors which is going on right now with your CBSE board exams, कुछ भी concrete नहीं पता चल रहा है. एंड ऑल्सो कितनी ज़्यादा एंजाइटी बढ़ जाती है तो पढ़ाई को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है. बट गाइज ऑलवेज फोकस ऑन योर एंड रिजल्ट एंड नॉट दीज रूमर्स. So not taking this further, today this video is about the application form which is open for MBBS. Yes, you heard it right. Kerala government ने आज नया notification डाला है where they have opened the MBBS application form. This is not specifically for MBBS, it's a combined form for a medical and allied engineering, architecture, B-Pharma, etc. etc. But हम लोग interested हैं medical में, right? सो अगर आप MBBS इन केरला करना चाहते हो, आप केरला में अगर MBBS करना चाहते हो तो आपको ये फॉर्म भरना ही पड़ेगा. बिकॉज इफ यू डोंट फिल द फॉर्म राइट नाउ और टिल 21st of June, then later on once you have your rank and result you will not be eligible to apply in Kerala. So the last date for filling up the form is 21st of June. Website है cee.kerala.gov.in. Will be sharing the link in the description box also. तो आप उस लिंक पे डायरेक्टली जाके आप अप्लाई कर सकते हैं. The application fee cost is ₹500. And there are two categories in which the students can apply. So basically अगर मैं नेटिविटी की बात करूँ, so केरला में नेटिविटी 3 कैटेगरी में डिवाइडेड होती है. पहला होता है केरलाइट कैटेगरी which is for the domicile of those students who are बेसिकली केरलाइट एंड वहीं रह रहे हैं या जिनके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, उनके बच्चों को हम केरलाइट कैटेगरी में लेते हैं. ये बच्चे गवर्नमेंट कोटा प्लस फी कंसेशन दोनों के लिए एलिजिबल रहते हैं. सेकेंड कैटेगरी कम्स द नॉन केरलाइट 1 एंड नॉन केरलाइट 2 कैटेगरी. तो नॉन केरलाइट 1 कैटेगरी में कौन से बच्चे आते हैं? वो बच्चे जो अपनी स्कूलिंग वहाँ से कर रहे हैं, लाइक 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में 5 साल आपने वहाँ से करा है, या वो बच्चे जिन्होंने 8 से लेकर 12 तक अपनी स्कूलिंग वहाँ पे की है, या वो बच्चे जिनके पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट में, डिफेंस में वहाँ पे पोस्टेड है या पिछले लास्ट 2 साल से केरला स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं. सो दीज स्टूडेंट्स दे कम अंडर द नॉन केरलाइट 1 कैटेगरी एंड दीज स्टूडेंट्स आर ऑल्सो अगेन एलिजिबल फॉर द state government quota plus all the facilities which is provided for the domicile except the fees concession and the physically disabled category quota. ये सब आपके लिए नहीं होता है. and students जो पहले केरलाइट एंड नॉन केरलाइट 1 में फॉल नहीं करते हैं, they come under the non केरलाइट 2 category. So students who are from outside Kerala and they have not done their any of your education from there, they come under the non केरलाइट 2 category. So आप भी वहाँ एलिजिबल हैं. So now the question is, ये नॉन केरलाइट 2 कैटेगरी वाले बच्चे किस कैटेगरी के कॉलेजेस के लिए, which type of colleges के लिए एलिजिबल है? So you guys are eligible for 15% management quota seats in the private medical colleges of Kerala. So if you are interested in applying into the private medical colleges of Kerala under the 15% management quota, so you have to fill the form of Kerala government, which is KIM, which is known as KIM 2021. आप उनकी वेबसाइट में जाके फॉर्म फिल कर सकते हो. एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ओवर हियर इज द फीस कॉस्ट इज ₹500. आपको फी पे करने के दो मोड्स हैं. इधर आप ऑनलाइन पे कर सकते हो या ई चलान. ई चलान बाहर के बच्चों के लिए नहीं है. ई चलान इज ओनली फॉर द डोमिसाइल कैटेगरी बिकॉज यू हैव टू गो टू द पोस्ट ऑफिस एंड डिपॉजिट द रिक्विजिट अमाउंट इन द पोस्ट ऑफिस. एंड ऑनलाइन पेमेंट आप कहीं से भी कर सकते हो. So this is the thing. And other eligibility criteria is being 50% in your PCM together. So these are same as your NEET. Nothing has changed over there. Guys, अगर आपने अभी फॉर्म नहीं भरा, बाद में जब आपका रिजल्ट आता है, then you become ineligible to apply in the state of Kerala, even if you are interested. बाकी अगर मैं फीस की बात करूँ तो अभी तक इसकी फीस अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है. लास्ट ईयर की जो फीस थी वो अर्लियर दे नोटिफाइड दैट इट वाज समवेयर अराउंड 5.5 lakh to 6 lakh per year, but later on there was court case which went from with the private medical colleges and in the high court and the state government, and तब कॉलेजेस की फीस कुछ लगभग 11 लाख से लेके 22 लाख तक थी, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट कॉलेजेस. इस साल का फीस वुड बी डिफरेंट. ऑल्सो हमने सुना है दैट NMC आ गई है विच इज प्लानिंग टू रेगुलेट द फीस फॉर 50% ऑफ द प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज.
So I would still suggest कि please apply for the application form. बाद में आप देख सकते हो कि whether you are interested in going over there or not based upon the fee structures और जो भी rules regulation आएंगे. बट क्योंकि अभी तक हमारे हाथ में ना रैंक है ना मार्क्स है, so जो भी अभी फॉर्म्स आ रहे हैं kindly fill up the form and keep it ready so that you don't regret it later on. I would be sharing the details in my description box regarding the link, regarding the fees of the application form. Also जो नेटिविटी सर्टिफिकेट आपका प्रोफॉर्मा उन्होंने दिया है उसका भी एक प्रोफॉर्मा मैं लिंक करने की कोशिश करूंगी. Apart from that, before I forget, the documents which needs to be uploaded are passport size photograph. उसमें फोटोग्राफ उस फोटोग्राफ में सिग्नेचर हो या आपका नाम हो, डेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी है तो भी चलेगा. सो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ. तो डेट ऑफ बर्थ में आप 2 सर्टिफिकेट में से कोई भी एक लगा सकते हैं. इधर योर 10th मार्कशीट दैट विल डू, नहीं तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट डाल सकते हैं अगर वो इंग्लिश में है एंड ऑल्सो आपका अगर पूरा नाम उसमें मेंशन है. डोंट फॉरगेट इफ योर होल नेम इज मेंशन एंड इफ इट्स इन इंग्लिश तब आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में डाल सकते हैं. 4th सर्टिफिकेट इज योर नेटिविटी सर्टिफिकेट विच इज बेसिकली आप अपना पासपोर्ट आप अपलोड कर सकते हो या आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो प्रोवाइडेड दैट इज इन इंग्लिश एंड दैट बियर्स योर नेम इन इंग्लिश ऑल्सो. एंड थर्ड उन्होंने एक प्रोफॉर्मा दिया. अगर आपके पास ये दोनों ही चीज़ें नहीं है तो प्रोफॉर्मा इज प्रीटी मच अवेलेबल ऑन द वेबसाइट. जब आप फॉर्म भरना शुरू करोगे स्टेप 2 के बाद यू कैन डायरेक्टली गो अप देयर इज ऑप्शन फॉर डाउनलोडिंग योर प्रोफॉर्मा. आप वहाँ पे करोगे, आपको जो प्रोफॉर्मा डाउनलोड करना है वो नॉन क्रेडिट 2 कैटेगरी का प्रोफॉर्मा डाउनलोड करना है. यू कैन टेक द प्रिंट आउट, गेट इट साइंड फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ योर स्कूल. बेसिकली उस प्रोफॉर्मा में ये लिखा है कि आपका नाम क्या है, आपके पेरेंट का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, स्कूल कहाँ लोकेटेड है. सो इससे आपकी नेटिविटी का पता चलता है. So that's it guys. Don't forget to subscribe to our YouTube channel or follow us on our Instagram and Twitter. We would be updating about the application forms and counseling as and when they are coming. तो आप सब्सक्राइब करें so that you don't miss out on anything because of lack of information. Because नहीं तो आप बाद में regret करते हो. Till then, take care and keep rocking. Bye bye.